Dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 5. As the chapter which we started last week, A Truly Beautiful Mind, okay? It has been deleted from our syllabus, okay? So today we have to start a new chapter, that is the snake and the mirror. So let's start. Now before starting the chapter, let me introduce you to the writer of this story, and the name of the writer is Vaikom Mohabbat Bashir. Muhammad Bashir, this person wrote this story actually in Malayalam. Okay, this story is actually written in Malayalam and it is translated in English by V. Abdullah. Okay, so let's start the story. Now, here is something given that before you read, do you like to look at yourself in the mirror? I think everybody loves to see in the mirror and admire itself. है ना? जनरली एवरी पर्सन हैज़ द हैबिट ऑफ लुकिंग इन द मिरर. अगर कांच सामने हो और हम नहीं देखें, इट्स नॉट पॉसिबल, इजंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच एट सच टाइम्स? यानी जब हम अपने आप को मिरर में देखते तो हम क्या सोचते हैं? तो आई थिंक सबकी एक ही थिंकिंग होगी, दैट समवेयर आई एम ब्यूटीफुल, इजंट. हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? तो आपने कभी नोटिस किया है कि जनरली अगर कोई बर्ड, कोई कैट, कोई डॉग, रैदर इट इज़ अ मंकी, बाय चांस अगर किसी मिरर के सामने आता है तो उनका क्या रिएक्शन रहता है अपने आप को उस मिरर में देखकर. नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट इट? सो लेट अस रीड दिस ह्यूमरस मीन्स एक्चुअली फनी स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, a snake and a mirror. Clear? So the three main characters here are the doctor, the mirror and the snake. So the story actually revolves around a homeopathic doctor and he was discussing about snakes in his class. So when he was discussing about this snakes in the class, he reminded one of his incident, जो उसके साथ जो भी एक incident हुआ snake से related, वो उस क्लास में स्टार्ट करता है बताना स्टूडेंट्स को. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एक्चुअली द इंसिडेंट विच ही फेस्ड. हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. So, has a snake ever coiled itself round any part of your body? So, here the homeopath means the doctor studying homeopathic. Okay. So, he raised a question in the class कि क्या कभी कोई स्नेक तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट पर अपने आप को उसने लपेटा है? A full-blooded here means powerful. So when he asked this question, all of us became silent. मीन्स सारे स्टूडेंट्स चुप बैठ जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं. The topic came up when we were discussing about snakes. तो वो टॉपिक कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि वो स्नेक्स के ऊपर ही कुछ टॉपिक पढ़ा रहा था क्लास में. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Tale means story. तो सब चुपचाप उसकी कहानी, जैसे उसने कहानी स्टार्ट की, सब चुपचाप सुनने बैठ जाते हैं. It was a hot summer night. About 10 o'clock. I had my meal at the restaurant, returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. Now, it was hot summer night, गर्मी की रात थी, and the time was nearly 10 o'clock. और रेस्टोरेंट में उसने अपना खाना खाया एंड ही रिटर्न टू हिज रूम. अपने रूम में रिटर्न जब लौटता है, ही हर्ड समथिंग, कुछ आवाज़ उसको सुनाई दी और वो आवाज़ कुछ फैमिलियर यानी नोन, जानी पहचानी आवाज़ थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो चूहों के साथ अपना रूम शेयर कर रहा था. इसका मतलब ये है कि उसके रूम में बहुत सारे चूहे थे. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. तो उसने matches का निकाला और kerosene lamp जलाया. The house was not electrified यानी वहाँ पर घर में lights नहीं थी. It was a small rented room
किराए पे रह रहा था, छोटा सा रूम था. आई हैड जस्ट सेटअप माई मेडिकल प्रैक्टिस. सेटअप यानी जस्ट यानी अभी अभी उसकी मेडिकल प्रैक्टिस यानी डॉक्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस होती है वो कंप्लीट की थी उसने. तो उसकी अभी सैलरी यानी अर्निंग्स जो थी वो मीगर मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत कम थी. तो आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, यानी उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस. आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट. सॉलिटरी मीन्स वन, सिंगल. ओके, वन ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, यानी उसके पास कुछ शर्ट्स थे, धोती थी और एक ब्लैक कोट था जो उसने उस वक्त पहन रखा था. ओके, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. वेस्ट मीन्स हम हिंदी में बोलते हैं बनियान. ओके, एंड हंग दैम अप. तो उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट और नॉट सो वाइट यानी डल हो चुका था वो बनियान, वाइट वेस्ट, एंड उसको टांग दिए उसने. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन wall facing the open yard. It has a tiled roof with long supporting gables. Gables, you could see this thing which has been shown here. It has a tiled roof with long supporting gable, then rested on the beam. ये beam जो खंबे दिखते हैं हमको. Over the wall. There was no ceiling. It means उसने अपनी विंडोज़ रूम की विंडो खोली and it was outer room. जैसे हम कह सकते हैं आउटर रूम मतलब जिसके ऊपर छत जो होती है वो सिर्फ इस तरह से गैबल होती है, ये आप देख सकते हो, सीलिंग नहीं होती है डायरेक्ट. देयर वॉज नो सीलिंग. क्लियर. सो इस तरह का उसका रूम था. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीन, यानी लगातार उस कमरे में चूहे रहते ही थे. आई मेड माई बेड. बेड यानी उसने अपना बिस्तर किया. पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, यानी दीवार की तरफ खिसकाया. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, यानी मैं लेटा लेकिन मुझे नींद नहीं आई. तो वॉट ही डिड, आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर. तो उसने सोचा मैं थोड़ा बाहर घूम कर ठंडी हवा लेता हूँ. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि विंड जो है उसका टाइम हो चुका था, इसलिए वो विंड चली गई थी, यानी उनका टाइम हो चुका था. तो हवा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं थी, बाहर भी उतनी ही गर्मी लग रही थी. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटेरिया मेडिका. आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अ कोम, स्मॉल कोम ले बिसाइड द मिरर. तो उसको नींद नहीं आ रही थी. तो व्हाट ही डिड, ही टुक आउट द बुक, दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक, एंड व्हाट ही डिड, ही ओपनड इट एट द टेबल. और उस टेबल पे एक लैम्प था और एक मिरर था बड़ा सा, और उसके पास एक छोटा सा कंगा रख रखा था बिसाइड द मिरर. वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. ऑब्वियसली जब हमारे सामने आईना हो और हमारी नज़रें उस तरफ नहीं जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इज़न्ट. तो एक बार अगर किसी के सामने मिरर हो तो ऑब्वियसली अपने आप टेम्पटेड यानी ललचाना, तो उसकी नज़रें अपने आप उस मिरर की तरफ ललचा जाती है और वो अपने आप को देखता है, एडमायर करता है. आई टुक अ लुक, मैंने एक झलक देखा. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, यानी उन दिनों वो अपने स्टूडेंट्स को कहानी सुना रहा है, तो इसलिए वो इस तरह से कह रहा है कि उन दिनों आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, यानी ही वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ बीइंग हैंडसम. उसको बहुत शौक था हैंडसम बन के रहना. ठीक है. आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, यानी अपने आप को हैंडसम शो करना. तो वो उसमें विश्वास रखता था कि वो ही वॉज अ बैचलर, ही वॉज नॉट मैरिड, इज़न्ट. तो ऑब्वियसली बैचलर है तो वो अपने आप को लोगों की नज़रों में अपने आप को शो करवाना चाहता है, इज़न्ट. एंड ही वॉज अनमैरिड, और दूसरा वो डॉक्टर भी था. तो ऑब्वियसली ही हैड टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, यानी लोगों में अपनी मौजूदगी वो बताना चाहता था. तो इसलिए वो हमेशा हैंडसम रहने की कोशिश करता था. आई पिक्ड अप द कोम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड पार्टिंग सो डैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट. तो उसने अपने बाल बनाए, ओके, उस कोम्ब से.
अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से उसे वो आवाज़ सुनाई दी. नाउ आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. तो उसने और मिरर की तरफ और नज़दीक जाकर अपने आप को देखा. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीशन. तो उसने सोचा आई वुड शेव डेली, मुझे रोज़ शेव करनी चाहिए. एक थिन मुस्टैच यानी मूछें. टू लुक मोर हैंडसम, तो ये चीज़ें मेरे फेस पे होनी चाहिए. रोज़ शेव करूँ और एक पतली सी मूछें रखूँ जिससे मैं और हैंडसम लगूँ. आफ्टर ऑल आई वॉज अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि एक तो मैं अनमैरिड था और ऑब्वियसली डॉक्टर, तो उस हिसाब से हमको अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी पड़ती. आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. तो उसने जब अपने आप को देखा और स्माइल किया तो उसको लगा कि मेरी स्माइल तो काफ़ी अट्रैक्टिव है. अगेन आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. फिर उसने एक और डिसीजन लिया, अर्थ शेकिंग डिसीजन. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम. तो उसने सोचा अब मैं हमेशा उस अट्रैक्टिव स्माइल को अपने फेस पे रखूँगा, सारा दिन हंसता ही रहूँगा, मतलब स्माइल रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ. तो जब ये बातें सब कुछ चल रहा था तो फिर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी. अब बार बार उसको एक रिपीटेड साउंड सुनाई दे रहा था. आई गॉट अप, पेस्ड अप. पेस्ट मीन्स एक्चुअली स्पीड, ठीक है. तो यहाँ पर पेस्ट का मतलब है चलना, टहलने लगा वो. एंड डाउन द रूम, तो वो उठा और नीचे टहलने लगा. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. स्ट्रक मतलब केम इन माई माइंड. उसके दिमाग में एक और विचार आता है, थॉट आता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए. आई वुड मैरी. नाउ हियर ही थिंक्स आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. यानी मुझे उस लेडी से शादी करनी चाहिए जो एक डॉक्टर हो, जिसके पास बहुत पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस. सेकेंड थिंग, शी हैड टू बी फैट, मोटी होनी चाहिए, इजंट. एंड इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. इसके पीछे क्या रीज़न है, वो क्यों मोटी होनी चाहिए? क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो जाती है, किससे? डॉक्टर से, तो वो अगर वहाँ से भाग जाए कुछ गलती करके तो उसकी वाइफ उसका पीछा कर नहीं सके, इसलिए. इजंट. सो ही थिंक्स सो हिज वाइफ शुड बी फैट. विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. तो ये सब बातें वो सोच ही रहा था, तो फिर से रिज्यूम का मतलब फिर से बैठना. तो वो फिर से अपनी सीट पे बैठा, उस चेयर में बैठा जो टेबल के बिल्कुल सामने थी. देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, यानी फिर वो आवाज़ उसको वापस आई नहीं, सुनाई नहीं दी. सडनली देयर केम अ डल थर्ड. थर्ड मतलब कि जब कोई चीज़ गिर जाती है, धीरे से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई, तो उसको कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई रबर ट्यूब हैड फॉलन, जैसे कोई रबर ट्यूब गिरी हो. To the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. तो उसने सोचा कि अगर ऐसी कोई आवाज़ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है. सो उसने सोचा क्यों ना मैं मुड़ के देखूँ एक्चुअली है क्या. टेक अ लुक. नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. तो जैसे ही वो टर्न हुआ, ठीक है, नो सूनर हैड आई टर्न, तो क्या हुआ, अ फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप, रिगल्ड यानी रेंगना, ठीक है, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, यानी उस चेयर के पीछे से होकर वो उसके शोल्डर पर आकर बैठ गया. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस यानी एक ही वक्त में उसका मुड़ना हुआ और उस सांप का उसके शोल्डर पर आना हुआ. तो दोनों एक ही टाइम पर ये एक्शन हुए. आई डिडंट जंप. अब जब वो स्नेक उसके शोल्डर पर आकर बैठा तो वो डरा नहीं. वॉट ही डिडंट जंप, ना तो वो कूदा, ना वो डर के मारे काँपा, ठीक है. ट्रेम्बल मीन्स टू शिवर.
आई डिडंट क्राई आउट, और ना ही मैं ज़ोर से चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसे उसको इतना समय ही नहीं मिला कि वो ऐसा कोई एक्शन कर सके। वो इतना शॉक्ड हो गया था उस स्नेक जब उसकी शोल्डर पर आया। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। सो स्लिदर्ड मतलब स्लिप होता हुआ, धीरे धीरे मुड़ना। तो वो देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, यानी शोल्डर से होता होता कॉइल्ड यानी अपने आप को उसने उसके लेफ्ट आर्म में पूरा लपेट दिया। अबव द एल्बो, अबव द एल्बो यानी हमारे आर्म्स और एल्बो के बीच के पार्ट में उसने अपने आप को लपेट दिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड का मतलब जो सांप का फन होता है, ठीक है, फन, तो स्प्रेड हेड ऑफ द स्नेक जिसको हम कह सकते हैं। तो ही स्प्रेडेड हिज हुड एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। नाउ यू कुड इमेजिन, यानी वो उसका जो उसने जब अपना फन फहराया तो उसके चेहरे पे के कितना करीब था, जस्ट 2 or 3 or 4 inches। तो यू कुड इमेजिन द सिचुएशन विच द डॉक्टर वॉज फेसिंग एट दैट टाइम। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। तो ये कहना सही नहीं होगा कि मैं वहाँ सांस रोककर बैठा रहा, ठीक है, क्योंकि एज आई वॉज टर्न टू स्टोन, आई वॉज टर्न टू स्टोन यानी वो डर के मारे जैसे बिल्कुल पत्थर बन गया था। टर्न टू स्टन मतलब इतना डर गया था जैसे कि वो पत्थर बन गया हो। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बॉडी तो बिल्कुल स्टिल, इट वॉज नॉट मूविंग, बट माइंड वॉज वेरी एक्टिव। द डोर ओपन इन टू darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. मतलब ये कि पूरे रूम में अंधेरा था, सिर्फ वो लैम्प की रोशनी थी उस रूम में, और वहाँ पर वो ऐसे बैठा था जैसे कोई स्टोन इमेज, यानी कोई पत्थर की मूर्ति जिसके अंदर फ्लैश है, मांस है, ऐसी कोई पत्थर की मूर्ति वहाँ बैठी हो। यानी उस सांप को देखकर वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गया था, नॉट एक्चुअली पत्थर की मूर्ति, लेकिन डर के मारे बिल्कुल पत्थरा जाना डर के मारे। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब उसको एहसास हुआ, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर। यानी वो सांप उसको ये चीज़ का एहसास दिला रहा था कि वाकई में भगवान है, जिसने कैसे कैसे क्रीचर्स इस वर्ल्ड में क्रिएट किए। इट मीन्स दैट स्नेक इज़ ऑल्सो अ creation of God, and even we human being, but still we both are scared of each other. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters, "Oh God." तो उसको ऐसे लगा शायद उसने कुछ गलत बोला हो गॉड से रिलेटेड, और उसी के रिज़ल्ट में ये स्नेक मेरे पास एज अ पनिशमेंट हो। तो ही वॉन्ट टू स्क्रीम, हे, हम जब कुछ हमारे साथ होता है तो हम बोलते हैं ना, हे भगवान, बट ही कुड नॉट से दिस वर्ड, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। ना वो जो सांप था, स्नेक, उसने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से, मतलब इतने स्ट्रांगली पावरफुली अपने आप को लपेट लिया था कि धीरे धीरे उसको लेफ्ट आर्म में दर्द होने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रॉड, रॉड मतलब डंडा, ठीक है। तो लीडन का मतलब होता है कि शीशे की रॉड, जिसको हम रॉड जो लीड की बनी हुई होती है, ठीक है। तो नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं, मोल्टन फायर यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग मेरे हाथों पे लिपटी हुई है। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। क्रशिंग मीन्स बहुत ज़ोर से प्रेस, यानी वो इतना टाइट हो चुका था, लपेट चुका था उसके हाथों में। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। व्हाट कुड आई डू? ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ यानी सारी एनर्जी निकल जाना, कमज़ोर पड़ जाना। एम ड्रेन ईयर मीन्स खाली हो जाना, और ऐसा लग रहा था जैसे उस हाथ की सारी एनर्जी, सारी स्ट्रेंथ, सारा पावर ड्रेन हो चुका था, खाली हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। व्हाट कुड आई डू? मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 inches अवे,
यानी अगर मैं थोड़े सा भी मूवमेंट करता हूँ, स्लाइट मूवमेंट भी अगर करता हूँ, तो द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, यानी वो अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो वो सांप मुझे डस सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, यानी ऐसा लग रहा था कि वो जो मौत है मेरे से बस कुछ इंच दूरी पर ही थी। वॉज द मेडिसन आई हैड टू टेक, देयर वॉज नो मेडिसन्स इन द रूम, अगर ऐसा होता है तो मेरे पास तो कोई मेडिसन भी नहीं थी उस रूम में। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। नाउ हियर आई वॉज बट मतलब ये कि भले ही मैं डॉक्टर था, ठीक है, लेकिन एक गरीब, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर जिसके पास ना पैसा है ना मेडिसन है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, तो मैं वो सारी मुसीबतें भूल गया और ख़ुद के ऊपर ही मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, यानी उस स्नेक ने अपनी फन को टर्न किया दूसरी तरफ। इट लुक्ड इन टू द मिरर, तो अचानक से उस स्नेक की नज़र उस मिरर पर पड़ी। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपने आप को, अपनी रिफ्लेक्शन को उस मिरर में देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, तो शायद ये कहना भी सही नहीं होगा कि ये शायद पहला सांप होगा जिसने अपने आप को सांप मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टन मीन्स श्योर दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन इस सांप को देखकर ये डेफिनेट लग रहा था कि ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? वॉज इट ट्राइंग? You could see here the snake, how he is looking into the mirror to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। मतलब ये कि उस सांप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्नेक ये सोच रहा है कि क्यों ना मुझे मूछें रखनी चाहिए, आई शेडो यूज़ करना चाहिए, मस्करा यूज़ करना चाहिए, और वर्मिलियन स्पॉट यानी सिंदूरी कलर की बिंदी होती है अपने फोरहेड पे होनी चाहिए। ओके, नाउ एक्चुअली ही वॉज नॉट श्योर कि वेदर द स्नेक वॉज अ मेल और फीमेल, और ये पता लगाना भी मुश्किल था। फॉर द स्नेक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सिदर्ड इन टू माई लैप, तो धीरे धीरे उसने उस हाथ से अनकॉइल्ड हुआ, यानी अपनी कुंडली खोली जो उसने अपने आप को लपेट रखा था, और वहाँ से वो धीरे धीरे इनटू माई लैप मतलब होता है गोद, ठीक है, तो धीरे धीरे वो रेंगता हुआ उसके पैरों पर आया, लैप तक आया, गोद तक आया, और फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो टेबल की तरफ पूरी तरह से आकर बैठ गया उस मिरर के सामने। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी रिफ्लेक्शन यानी अपने आप को देखकर इंजॉय कर रहा था। सो वॉट दैट आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, सडनली जैसे वो पत्थर की मूर्ति इंसान में आ गई, उसमें जान आ गई हो, ऐसा लग रहा था। वॉट दिस पर्सन डिड, ही वेंट थ्रू द डोर इन टू द वेरेंडा एंड फ्रॉम ही देयर लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल एज आई बर्थ, यानी जैसे ही मौका मिला वो घर के बाहर भाग गया। ईच ऑफ अस हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। नाउ हियर ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ मीन्स जैसे वो स्टूडेंट ये सारा इंसिडेंट सुन रहे थे, तो जैसे उनके सामने ये सारा हो रहा हो, तो उन्होंने भी एक चैन की सांस ली कि वो सांप वहाँ से चला गया। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ उनके सामने हो रहा है। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? किसी ने पूछा कि वाकई में डॉक्टर आपकी वाइफ फैट है? तो ही सेड नो, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मतलब ये कि वो कहता है कि मेरी वाइफ दुबली ही है और स्प्रिंटर यानी तेज़ भागने वाली है। डॉक्टर व्हेन यू रेड डिड द स्नेक फॉलो यू? फिर दूसरा स्टूडेंट पूछता है कि जब डॉक्टर आप घर से बाहर भागे तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? तो द डॉक्टर सेड डेट आई रैन एंड रीच माई फ्रेंड्स हाउस, यानी मैं भागते हुए अपने फ्रेंड के घर पहुंचा। वहाँ पर आई स्मियर्ड ऑयल ओवर माई सेल्फ, अपने पूरे शरीर पे उसने ऑयल को रब किया।
और फिर उसने बाथ ली यानी नहाया और फिर फ्रेश क्लोथ्स पहने। अगले मॉर्निंग वो 8:30 बजे अपने फ्रेंड के साथ और 2-3 और लोगों के साथ अपने रूम में जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि चोर ने बहुत सारी उसकी जो चीज़ें थी वो वहाँ से गायब कर दी थी, यानी चुरा ली थी। तो ऑलमोस्ट उसका कमरा पूरा क्लीन कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी इंसल्ट ये थी कि वो क्या छोड़ के गया, माई वेस्ट द डर्टी वन, यानी उसकी गंदी सी बनियान वो उसने वहीं टंग रही थी, वो उस चोर ने नहीं चुराई। तो यहाँ पर वो कहता है राइटर कि उस चोर में भी एक क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई, साफ़ कपड़े पहनने की सेंस होगी, तो इसलिए उसने वो गंदी सी वेस्ट नहीं ली वहाँ से। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे? तो डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने वापस उस सांप को देखा? तो ही सेड आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। तो वो कहता है कि मैंने तब से उसको कभी नहीं देखा। ये एक ऐसा सांप था जो अपने ही ब्यूटी पर अट्रैक्ट हो गया था और यही रीज़न था कि वो जो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो बच गया था। ओके, so the chapter is completed and do the work which has been given to you. Thank you.